ढोल बजाने का है, जो रवैया है, अलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। Rishabh, you also had a question regarding on that. I think there are two, three things there. There's talk of some. We saw some social media post about Egyptian, American aircraft, etc. But those questions are for them to answer, not for us. But on the nuclear, we in the defense briefing, if you remember, our side made things very clear as to what was the target, etc. As far as your particular question, I think the Pak Foreign Minister also has made some comments on that. Manas, about nuclear issue that you pointed out. See, the military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. So, Rishabh, that also answers your question. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region. Can we take more questions? Okay. Good evening, sir. Dhairy Maheshwari from Sputnik, sir. Just a clarification. Secretary Marco Rubio tweeted that India and Pakistan had agreed to ceasefire as well as start talks on a broad range of issues at a neutral site. So would it be possible to get a clarification on this if we agreed to that? And sir, the second question is about India-US trade talks. India has formally notified the WTO proposing retaliatory tariffs against select US imports over Washington's tariffs on steel and aluminum imports. Would it be possible to get a clarification on this? And does it affect India's negotiating position vis-a-vis the bilateral trade agreement? Thank you. Okay, Smita. Smita Sharma here. I mean, the US State Department actually in the press statement of 10th May, it was in bold and headline that mentioned US brokered ceasefire between India and Pakistan. I'm just trying to understand if New Delhi actually rejected it outrightly, raised it with Washington DC then, that this framing was incorrect, or is it only now that India is making it clear that there was no US role in it? And just a quick question on whether there's any update on PK Sahu, the BSF constable, who has been in Pakistan captivity for more than 20 days now. Or he's been arrested there because he inadvertently crossed. Suhasini. Mr. Jaiswal, this is Suhasini Haidar from The Hindu. In continuation to Smita's question about whether India has raised with the US these clearly what you are calling false statements made by US President Donald Trump, that India did not broker, the US did not broker a ceasefire, that trade was not discussed. These are all things that have been said now on the record in camera. So have you raised this at any level? And similarly, yesterday at the MOD briefing, we heard them speak about the Chinese equipment, hardware support to Pakistan. I wanted to ask if this is something that is going to be taken up with China in terms of India and China's own bilateral relationship. So both of them, are these two things going to have any impact on India's relations with either the US or China? Neeraj. Sir, Neeraj from News 18.
सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि कई अमेरिकी नेताओं की बात मिलिट्री जो कार्रवाई चल रही थी भारत की उस दौरान बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस अमेरिकी नेता की बातचीत हुई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में आया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने उनसे बातचीत भी किया और यह भी अनुरोध किया था कि वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई को थोड़ा कम करें, डी एस्केलेट करें। और दूसरा सवाल यह है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ माफ कीजिएगा, तो बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन लगा दिया वहां की सरकार ने। भारत इसको कैसे देख रहा? Okay, there, first regarding your question about Secretary Rubio's comments, on that I have already spoken. I have told you how the understanding between India and Pakistan was bilaterally reached and what was the conversation that we had with other countries. On trade matters, I do understand that there is a proposal which has been made in Geneva. It has been made very recently, so I don't have further details on that, but for sure we'll update you with the matter as we progress with those negotiations. Smita, again, I have already answered those questions of yours when I talked about, the question of ceasefire as to who decided, what were the terms, when it happened, etc. So I would urge you to look at those comments of mine. I have told you that we have conveyed our position. I conveyed our position here on record, so I will request you to look at that. On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update, but these are matters which pertain to the Ministry of Defense and they are looking into it. Again, Suhasini, on ceasefire, I've made India's position very clear, where we stand. So I would urge you to look at my comments. On the other question that you had, and possibly it had come up in the conversation or the press conference yesterday, there we have, I would say that we have obviously taken note of this. I direct your attention to the comments in the defense briefing about the extent of their effectiveness or otherwise. नीरज, आपके दो सवाल। प्रधानमंत्री की बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से हुई थी और उस दरमियान जो बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, उसके आपको अवगत भी कराया गया है। जहां तक अवामी लीग की बात है, the ban on the Awami League without due process is a concerning development. As a democracy, India is naturally concerned at curtailment of democratic freedoms and shrinking political space. We strongly. The biggest mistake when starting a business is investing. है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल अब मंजूर नहीं है। भारत पाकिस्तान आपस में इस पूरे मुद्दे को सुलझाएंगे। ट्रंप ने आपको बता दें कि 2 दिन पहले मध्यस्थता की बात कही थी। तो विदेश मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पिछले 4 दिन में जो वहां पर लोकतांत्रिक आजादी को रोका जा रहा है और जो वहां पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। Can we then go? Manish. सर, मैं मनीष झा हूँ, TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने एक और कैरेक्टर देखा, वो था तुर्की का रोल। जिस तरीके से टर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, इसके अलावा टर्की ने लगातार इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और टर्की उस समय पाकिस्तान के साथ है, जबकि आपको याद होगा 9/11 के टाइम में अमेरिका का डायलॉग था कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप आतंकियों के साथ हैं। तो टर्की के मामले में भारत की अब नीति क्या रहने वाली है?
देखिए, जो सवाल का जवाब दे दिया गया उसको ना पूछे, कोई नया सवाल हो तो बताएं। यशी। This is Yeshi Seli from Business India. Are there any leads of the terrorists who attacked on the 22nd of April? And 3 terrorists were neutralized in Shopian today. Do they have any links with the terror attack of the 22nd? And in addition, when are the next DGMO talks likely to be? 1 मिनट। बताइए सर। ब्रह्म प्रकाश हूँ न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे मित्र देशों की भूमिका रही, उसको लेकर खासतौर से अमेरिका की भूमिका ये देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में बराबर तौला गया है, ये माना जा रहा है। क्या जिस तरह से भारत कहता रहा है, अमेरिका कहता रहा है कि दोनों क्लोज पार्टनर है, क्या भारत की डिप्लोमेसी को एक तरह से अमेरिका की तरफ से झटका लगा है? भारत इस पर दोबारा विचार करेगा? क्योंकि जिस तरह से रुख रहा है अमेरिका का, ये माना जा रहा है, सीधे शब्दों में कहें कि अमेरिका ने धोखा दिया इस पूरे मामले में, क्या कहना है? मधुरेंद्र। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। यह स्पष्ट है कि चीन और तुर्की के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, और इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो आज ब्रीफिंग हुई है, क्या उसमें डिफेंस अटैचे चीन के और तुर्की के बुलाए गए थे? क्या बुलाए जाने पर उन्होंने अटेंड किया? दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमने एक ट्रेंड क्रिएट किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आगे होने वाला कोई भी भारत पर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान प्रेरित आतंक की तरफ से हमला सीधे तौर पर कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान पर वॉर के तौर पे देखा जाएगा? हम सीधे युद्ध थोपेंगे या युद्ध करेंगे पाकिस्तान से? मनीष जी, पहले तुर्की को लेके काफी सारे सवाल थे। देखिए, सुहासिनी के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि हमारा क्या नजरिया है, और तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस, जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात किया था। Yeshi, the investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. DGMO talks, I understand, had happened yesterday, and many of you were informed of the developments and the discussion. तो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे। पाकिस्तान की गोली का जवाब देंगे, पीओके खाली करे पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो कुछ भी जानकारी दी गई और विदेश मंत्रालय ने जो कुछ भी कहा है, उसको विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले आईएनएच के मंच पर। जी नमस्कार। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। भारत पाकिस्तान आपस में इसे सुलझाएंगे। किस तरीके से इसे देखें, किस तरीके से इसे समझे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही थी। देखिए, जो विदेश पाकिस्तान जिस प्रकार से इस बात को प्रचारित कर रहा था अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो बहुत जो है वो अब ग्लोबल मुद्दा हो गया है, और शिमला समझौते को रद्द करने की बात भी कह चुका है, निलंबित करने की बात कह चुका है पाकिस्तान। और ट्रंप के जो बार बार बयान सामने आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना था, और इसीलिए विदेश मंत्रालय ने हमारे बहुत स्पष्ट कह दिया है कश्मीर को लेकर कि कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत उसी आधार पर होगी जैसे शिमला समझौते के अंतर्गत हुआ करती थी। तो जो खासकर ट्रंप के जो ट्वीट एक के बाद एक आ रहे हैं, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट है, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को
खासकर पाकिस्तान की जो सोच है या पाकिस्तान का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस पर विदेश मंत्रालय ने बहुत अपना भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है और यह अमेरिका के लिए भी संदेश है। जी तो बिल्कुल अमेरिका के लिए साफ तौर पर एक संदेश भी है। विदेश मंत्रालय ब्रह्मदीप जी ये भी कहा है उन्होंने कि टीआरएफ को यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराएंगे, तो इससे क्या समझे? देखिए, लश्कर-ए-तैयबा का पार्ट है टीआरएफ और जो भारत है वो कुछ साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र में इस पर बात कर चुका है। तो पाकिस्तान ने टीआरएफ का पक्ष लिया था और चूंकि पहलगाम में टीआरएफ का नाम आया है तो टीआरएफ को लेकर कोई भी जो भारत का कदम है वो न केवल भारत की स्थिति स्पष्ट होगी लेकिन इसके साथ ही साथ ये संदेश भी देना है कि यह जो पहलगाम का जो आतंकी हमला था इसमें पाकिस्तान का योगदान था और पाकिस्तान परस्त टीआरएफ इसमें शामिल रहा है। यही कारण है कि भारत जो डोजियर लेकर जाने वाला है या जो दस्तावेज लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाने वाला है उसमें टीआरएफ को लेकर भी बात होने वाली है और भारत का स्टैंड क्लियर है कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार था और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, विदेश मंत्रालय की भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इससे पहले भी सेना की तरफ से जितनी भी ब्रीफिंग की गई है उसमें भी ये बार बार कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो हम भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भी आज ये साफ तौर पर किया है, लेकिन जिस तरीके से सीज फायर हुआ है उसके बाद तुरंत बाद ही देखा गया कि पाकिस्तान ने जो है उसका उल्लंघन किया। हालांकि स्थिति उसके बाद से काफी ज्यादा सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी आशंका लगाई जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान की आदत से हम सब वाकिफ है। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी आया है और वो सिंधु जल संधि को लेकर धमकाने वाले अंदाज में भी बात कर रहे हैं जी। तो ये जो सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि जो युद्ध विराम है या जिसे संघर्ष विराम भी हम कह सकते हैं ये जो है ये कब तक होगा इसके बारे में कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की फौज का जो रवैया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है और संघर्ष विराम के बाद तुरंत ही जो संघर्ष विराम तोड़ने की घटनाएं सामने आई थी। फिलहाल जो है वो शांति है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा है कि संघर्ष विराम या पाकिस्तान के प्रति हमारा बर्ताव क्या होगा जब पाकिस्तान इसका पालन कैसे करता है इस पर निर्भर करेगा। तो भारत ने बहुत स्पष्ट किया गेंद पाकिस्तान के पाले में है। यदि पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत हुई तो फिर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वह स्थगित हुआ है, अभी रुका है, वो खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि भारत इससे ज्यादा तीव्रता से हमला कर सकता है और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भी है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से आज की जो विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पाकिस्तान के लिए तो संदेश है ही, इसके साथ साथ जो है अमेरिका के लिए भी संदेश दिया गया है कि ये आपसी मामला है, हम आपस में ही सुलझाएंगे। तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रह्मदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम